Hello guys, welcome to our channel. Today we are discussing about the fraction, which is class 6 chapter number 7. Let's study what is fraction. A fraction is a number representing on a part of a whole. इन किसी भी whole number यानी 0, 1, 2, 3, 4 up to so on, इनमें से किसी भी एक नंबर के अगर वो पार्ट को बताए तो क्या होगा? फ्रैक्शन होगा. लेट्स सी. The whole may be a single object or a group of the object. ठीक है. Suppose Suresh has a chocolate and we want to equally share with his friends Amit. कह रहा है सुरेश के पास चॉकलेट है और वो हमको शेयर करनी है, इक्वली शेयर करनी है किससे? अमित से. He will divide the chocolate into two pieces. तो चॉकलेट को क्या करेगा? वो डिवाइड करेगा कितने पीसेज में? टू पीसेज में, है ना. And keep one pieces with him and leave another pieces to Amit. तो one piece वो किसको देगा? खुद रखेगा और one piece वो अमित को देगा. ठीक है. So basically they each have got one part of two. तो one part इधर अमित को मिला और one part इधर रमेश को मिला. Then 1/2 of the chocolate. तो total part कितने हो गए? 2, जिसमें से 1 किसको मिला? अमित को मिला और 1 ही किसको मिला? रमेश को मिला. ठीक है. सिमिलरली इफ दे हैव अनदर सुरेश आल्सो, एक सुरेश और है, ठीक है, देन दे विल डिवाइडेड चॉकलेट इनटू 3 पार्ट्स. तो डिवाइड चॉकलेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा? 3 पार्ट्स में, 3 इक्वली पार्ट्स में, 3 इक्वली पार्ट में. ठीक है. देन द वन पार्ट इज फॉर रमेश एंड वन पार्ट इज फॉर सुरेश एंड वन पार्ट इज फॉर सुमित. देन द टोटल पार्ट इज 3. टोटल पार्ट इज 3, 1, 2 and 3. ठीक है. Then the part of this race is 1. Then the fraction of this race chocolate is 1/3. Same as we find Amit and Suresh. ठीक है. Let's see what is given. If a number is in a form of a fraction, then the upper power is called numerator and the value of 5 show the denominator. ठीक है. जो ऊपर वाली वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर एंड नीचे वाली वैल्यू को हम बोलेंगे डेनोमिनेटर. ठीक है. लेट्स सी हाउ वी डिवाइडेड. लेट्स सी द बॉक्स. There are 1, 2, 3, 4, 5. Total have 5 parts. Total have 5 parts. How many are in blue color? 1, 2, 3, 4. 4 parts in a blue color. Okay. Then it is a fraction of this box. Let's see. When expressing a situation of a counting part, to write a fraction, it must be ensured that all parts are equal. ठीक है. तो कह रहा है when expressing a situation of counting number, to write a fraction, किसी भी नंबर को अगर मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूं तो it must be ensured that all parts are equal. तो all parts क्या हो सकते हैं? इक्वल हो भी सकते हैं. और लेट्स सी. ये चॉकलेट है. अब मेरे को 5 पार्ट्स में डिवाइड करनी है. तो 1, 2, 3, 4 and 5. देन द इक्वली पार्ट इज, टोटल कितने पार्ट है? टोटल पार्ट है 5. तो इसको कितना आएगा? 1/5. देन इसको 1/5. तो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ किसी भी नंबर को. ठीक है. लेट्स सी टाइप ऑफ ए फ्रैक्शन. देयर आर 3 टाइप ऑफ फ्रैक्शन. फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, second is improper fraction and third is mixed fraction. Let's see about the three type of fraction. Let's see. First is proper fraction. What is proper fraction? Proper fraction is a fraction which is less than 1 and where numerator is less than denominator. कह रहा है जो numerator होगा वो किससे कम होगा? denominator से कम होगा. तो हम उनको क्या बोलेंगे? proper fraction बोलेंगे. ठीक है. Let's see. Here the denominator show the part of whole has been divided and numerator show the which has been considered. ठीक है. तो denominator शो करेगा टोटल पार्ट कितने डिवाइड किए गए हैं और numerator शो करेगा, numerator show the part which have been considered, जिस पार्ट को क्या किया गया? कंसिडर किया गया. ठीक है. Let's see.
This is the same fraction which we discussed from the fraction definition. Let's see example 1/3 क्या न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा है? हाँ बिल्कुल छोटा है, इट मीन्स इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। देन क्या 2 3 से छोटा है? बिल्कुल है, इट मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर, देन इट इज आल्सो कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। देन सी 4/3 क्या 4 3 से कम है? नहीं है, इट मीन्स न्यूमरेटर इज मोर देन डेनोमिनेटर, इट मीन्स नो प्रॉपर फ्रैक्शन। Let's see the next part. Improper fraction. Improper fraction is a fraction which is greater than 1. Improper fraction क्या होता है? वो fraction जो कि क्या हो, greater than 1 और where numerator is greater, numerator क्या होगा, greater होगा, ज्यादा होगा किससे? Denominator से। numerator is greater than denominator। ठीक है, let's see, let's understand this example. Suresh has 5 chocolates. सुरेश के पास कितनी चॉकलेट थी? 5 चॉकलेट थी सुरेश के पास। Then he has to divide those chocolates among 4 friends. 5 चॉकलेट को किन किन में डिवाइड करना है? 4 दोस्तों में डिवाइड करना है। ठीक है, we can divide each chocolate into 4 parts and each one have 1/4 part of the chocolate. अब चार इन 5 बंदों में, सॉरी 5 बंदों में मैं एक एक चॉकलेट डिवाइड कर दूंगा, एक एक चॉकलेट डिवाइड कर दूंगा, एक एक चॉकलेट दे दूंगा इनको। देन 1 चॉकलेट बच गई। देन when we divide each chocolate into 4 parts, each one have 1/4 part of the each chocolate। ठीक है, so each friend have among 5 part of the 1/4 part। Now 4 parts make one whole, so basically each one of them is getting one whole and the one part। ठीक है, तो 4 चॉकलेट तो डिवाइड होगी, बचा कितना? एक चॉकलेट। तो 1 चॉकलेट को मेरे को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना? 5 पार्ट्स में। तो कितने पार्ट्स है टोटल? 5, और डिवाइड करना है 1 पार्ट, देन 1/5। देन each friend get 1 and 1/5 part of the chocolate। Then we add, take LCM 5, then 5 plus 1 that is 6/5। ठीक है, क्या शो कर रहा है? जो कि न्यूमरेटर है ग्रेटर है किससे? डिनोमिनेटर से। इट मींस इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल। लेट्स सी what is given। It is given that 11/5, 11 is a numerator and 5 is a denominator. Numerator is greater than denominator, then it is called improper fraction। Then 5/4, 5 is also greater than 4, then it is also called improper fraction। Then 10/9, 10/9, 10 is also greater than 9, then it is also called a improper fraction। Let's see mixed fraction। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर नंबर। होल नंबर्स और प्रॉपर नंबर्स को क्या करना? कंबाइन करना, किसकी फॉर्म में? फ्रैक्शन की फॉर्म में। वो क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। लेट्स सी 8 is a whole number and 4/9 is a proper fraction, then it is called a mixed fraction। ठीक है, let's see how we solve। Let's the example of improper fraction only। The division can made in another way। We give 1 chocolate to each of them and divided the 5th chocolate into 4 pieces। ठीक है, तो 1 chocolate हर एक को दे देंगे और जो 1 chocolate बची वो डिवाइड कर देंगे हर 4 पार्ट्स में। ठीक है,
So each of them got one full chocolate and one quarter of the chocolate. हर एक को एक complete chocolate मिलेगी और one quarter यानी 1/4 of the chocolate मिलेगा. So this can be written 1 plus 1/4 then 1 into 1/4 is a mixed fraction. ठीक है. Then how we solve 1 plus 1/4, that is 1 into 1/4. Then multiply with डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, वोल के साथ, वोल नंबर जो है इन 4 into 1 4 into 1 और then we add the numerator and 4 into 1 4 और 4 plus 1 divided by 4 then 4 plus 1 5 then 5/4 is a fraction. ठीक है. Let's see example 2 into 1/2. ठीक है. It means 2 is whole and 1/5. ठीक है. It is mixed fraction. How we solve 2 into 1/5. Then multiply denominator by a whole number. Then 2 into 5 10. Or then add the multiply denominator by 2 and add numerator and divide by 5. Then 5 to the 10 or then 11/5 is your right answer. How we solve the next part 1 into 3/4. Then multiply denominator by a whole number. Then 1 into 4. Then add numerator and divide by denominator. So 4 into 4, 4 into 1, 4 into 3, 7. 7/4 is your answer. Okay. Then how we solve 1 into 1/9. Then multiply denominator into a whole number 9 into 1. Or then we add numerator and divide by denominator. 9 into 1, 9 plus 1, 10/9 is your right answer. Okay. Let's see 7/4, 11/5 and 10/9 all have improper fraction. तो जब भी कोई भी नंबर अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है तो इट मीन्स वो कैसा नंबर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है. यानी प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी भी हम कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू ए मिक्स फ्रैक्शन. कह रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे. अब इम्प्रॉपर को मिक्स में करना. लेट्स सी 13/6. 13/6 इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो क्या है, ग्रेटर देन है डेनोमिनेटर से. देन हाउ वी राइट टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू ए मिक्स फ्रैक्शन. लेट्स सी डिवाइड 13/6. लेट्स सी 6 to 12 देन कितना बच्चा 1. ठीक है. लेट द क्वोशिएंट जो होगा वो नंबर की साइड लिखा जाएगा यानी 2 एंड जो डेनोमिनेटर होगा सॉरी जो वेट 2 एंड जो रिमाइंडर होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर की तरफ. एंड जिससे मल्टी डिवाइड किया जाएगा वो कहाँ लिखा जाएगा, नीचे की तरफ. ठीक है. देन 2 into 1/6 इज योर राइट. Let's see the next part. Obtain the mixed fraction. Let the mixed fraction be 5 into 2/6. क्या करेंगे, लेट्स सी. आइडेंटिफाई द whole number. तो whole number क्या, 5. देन 5 as it is. मल्टीप्लाई करेंगे 5 की किसके साथ, डेनोमिनेटर के साथ, यानी 5 into 6. और देन ऐड कर देंगे क्या, न्यूमरेटर और देन बाय में डेनोमिनेटर यानी 6. देन 6 5 जा 30 प्लस का 2 32/6. दैट इज योर राइट आंसर. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. एग्जांपल 1 into 1/3.
Then whole number multiply by denominator and add numerator and divide by denominator. Then 1 into 3, 3 plus 1 divided by 3. Then 3 plus 1 is 4 divided by 3 is your right answer. How to convert improper fraction to a mixed fraction? कह रहा है improper fraction को कैसे मैं change करूंगा mixed fraction में? Let's see. Obtain the improper fraction. Divide the numerator by denominator. Denominator को numerator से मैं divide करूंगा and obtain the quotient and the remainder. Write the mixed fraction as quotient equal to remainder by my denominator. Let's see. 11 by 3. Let's we divide 11 by 3. Then 3 3 ja 9. Then 3 3 ja 9 कितना बचा 2. Then रिमाइंडर को क्या करूंगा मैं ऊपर लिखूंगा और डेनोमिनेटर को कहाँ लिखूंगा डेनोमिनेटर को नीचे लिखूंगा एंड जो क्वोशिएंट आया वो कहाँ साइड में तो देन 3 into 2 by 3 is a mixed fraction. Let's see the next part. How to represent fraction on a number line. Represent कैसे करेंगे किसी भी fraction को किसी भी number line पे. Let's see. We can show fraction on a number line. In order to represent 1 by 2 on a number line, draw the number line and look for the portion of 1 and 2. Let's see. Now divide the gap between 1 and 2. 1 और 2 के gap को क्या करूँगा divide करूँगा into equal parts. Then the point of division, जिस point पर division होगा क्या होगा 1 by 2 होगा. Let's see. To represent 1 by 4 on number line, we divide the gap 0 and 1 in equal 4 parts. Let's see. 0 and 1 को डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में 4 इक्वल पार्ट्स में देन 1 2 ठीक है तो 1 2 3 एंड 4 ठीक है then we divide the gap 0 to 1 in 4 equal parts. First part is 1 by 2, then first part is 1 by 2, second part is 1 by 2, second part is represent on 1 by 2 and the third part is यानी 2 by 2 यानी cancel out करूंगा तो 1 then third part is 3 by 4 ठीक है हो जाएगा let's see simplest form of a fraction simplest form किसी भी fraction को कैसे लिखेंगे let's see 3 by 6 is in a proper form let's cancel out 3 1 ja 3 and 3 2 ja 2 then 1 by 2 is the simplest form of this fraction okay let's see 12 by 18 then cancel out 6 2 ja 12 and 6 3 ja 18 then 2 by 3 is the simplest form of 12 by 18 let's see if the numerator and the denominator of a fraction have no common factor expect क्या है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है देन इट इज सेड टू बी इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म तो वो क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होगा लेट्स सी 1 बाय 3 1 और 3 में क्या है कोई भी दो कॉमन फैक्टर नहीं है इट मींस इट इज आल्सो इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म 2 बाय 3 में भी कोई भी सिंपलेस्ट फैक्टर नहीं है इट मींस इट इज आल्सो ऑन इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट equivalent fraction. What is equivalent fraction? Equivalent fraction are fraction that have the same value in a simplest form. यानी वैल्यू क्या दी गई हो सेम दी गई हो किसकी फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में तो फ्रैक्शन क्या होंगे इक्विवेलेंट होंगे इक्वल होंगे लेट्स सी इन a box one part total two parts and one part is colored then 1 by 2 the next box is total have four parts then 4 or 2 are shaded then 2 by 4 2 by 4 1 by 2 then in third box
It have total 6 part. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parts. And colored is 3 color. And the next box is total have 8 part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In which 4 parts are colored. 1, 2, 3, and 4 parts are colored. Then we cancel out each of 1 by 2. They have no common factor. They have no common factor. Then the simplest form is also 1 by 2. 2 by 4. It have a common factor. 2 1 ja 2, then 2 ja. Then 1 by 2. It is a simplest form. Then 3 and 6 have a also factor, common factor. Then 3 1 ja 3 2 ja 6. Then 1 by 2 is in simplest form. Then 4 by 8 have also common factor. Then we cancel out 4 1 ja 4, 4 2 ja 2. Then the simplest form of 4 by 2 is 1 by 2. Both parts, all parts of the boxes have simplest form is 1 by 2. It means सभी की simplest form क्या है 1 by 2 है, सभी की simplest form क्या है equal है. It means ये क्या होंगे equivalent fraction होंगे. ठीक है. Let's see example. 2 by 6 and 1 by 3 and 6 by 18 are equivalent fraction. They have same value. 2 by 6, then 1 by 3 and 6 by 18. कह रहे तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. लेट्स सी 2 and 6 have common factor. Let's cancel out 2 1 ja, then 2 3 ja 6, then form is simplest form is 1 by 3. It is have no common factor, then the simplest form is 1 by 3. Then 6 and 18 have a common factor. 6 1 ja and 6 3 ja, then its simplest form is 1 by 3. ठीक है. All parts have the simplest form is 1 by 3 1 by 3 1 by 3. It means it has a equivalent fraction. Let's see the next part. The equivalent fraction of a given fraction is obtained by multiply both the numbers and the denominator of given fraction by the same number. ठीक है. तो अगर किसी भी equivalent fraction को given fraction is obtained by multiply, जो given fractions को multiply करेंगे किससे, denominator से भी and denominator में से भी, of given fraction of the same number. तो नंबर का क्या देगा, सेम नंबर देगा. लेट्स सी चेक आउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. कह रहा है 2 by 3 का अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, तो जिस नंबर से मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं उसी नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देता हूं, देन जो नंबर आएगा वो क्या होगा, इस नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा. लेट्स सी 2 by 3. अगर 2 by 3 का मेरे को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो 2 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ. 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6. देन 4 by 6 इज आल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2 by 3. लेट्स वी कैंसिल आउट करेंगे तो 2 4 एंड 6 हैव अ कॉमन फैक्टर. देन 2 2 जा एंड 2 3 जा. लेट्स सी सेम वही आ गया ना. इस कह रहा है इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन के कितने भी क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते. लेट्स सी 2 by 3 का नेक्स्ट निकालूंगा तो 3 into 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ. देन 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9. देन 6 by 9 इज आल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2 by 3. ठीक है. देन 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 into 5, 5 2 जा 10 और 3 5 जा 15. 10 by 15 इज आल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2 by 3. ठीक है, हो जाएगा. लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन. ठीक है. व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन? विच हैव सेम डिनोमिनेटर. वो फ्रैक्शन जिनका क्या हो डिनोमिनेटर सेम हो. और अनलाइक फ्रैक्शन विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, यानी जिनका डिनोमिनेटर क्या हो डिफरेंट हो. डिनोमिनेटर क्या हो डिफरेंट हो, वो क्या होंगे अनलाइक फ्रैक्शन. और जिनका डिनोमिनेटर क्या हो सेम हो, वो फ्रैक्शन होंगे लाइक फ्रैक्शन. ठीक है. लेट्स सी लाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड फ्रैक्शंस. ठीक है. वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर क्या हो सेम हो तो उनको क्या बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन. एग्जांपल 1 by 3 2 by 3 both have the denominator is 3. It means it has like fraction. That 1 by 4 and 3 by 4 both have denominator is 4. Then it has like fraction. Okay. Then the next point is unlike fraction. Fraction with the different denominator. जिसमें denominator क्या हो different हो, वो क्या बोले जाएंगे unlike fraction. Let's see 1 by 3
and 2 by 5. 1 by 3 and 2 by 3, denominator is 3 and denominator is 5. So both have different denominator. It means it is called unlike fraction. Okay. Let's see, the next point is comparing fraction. How we compare fraction? We often come across a situation where we need to compare fraction. हमको fraction का compare करना पड़ेगा, ऐसी situation आएगी. There is a systematic procedure available to comparing fraction. It is divided into two: comparing like fraction, which is easy, and other is comparing unlike fraction. ठीक है. तो कह रहा है अगर कोई भी दो फ्रैक्शन दिए गए हैं तो उनको क्या कर लूंगा, लाइक फ्रैक्शन कर लूंगा. लाइक फ्रैक्शन का मतलब है उनके डेनोमिनेटर पे क्या कर लूंगा, मैं सेम कर लूंगा. देन वो क्या आ जाएगा, एज कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा. क्या करना, उनके लिए कंपेयर करना. लेट्स सी कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन. हाउ वी कंपेयर लाइक फ्रैक्शन? 7 by 8. It have total 8 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8. Then 8 is in denominator. How many are colored? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parts are colored. Then the fraction is 7 by 8. Then the fraction is 7 by 8. Let's see the next part. Total parts are 8. Then how many colored? 1, 2, 3, 4, 5 are colored. तो विच वन इज ग्रेटर, 7/8 इज ग्रेटर किससे, 5/8 से. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. द न्यूमरेटर वैल्यू डिसाइड द लार्जर वैल्यू. अगर डेनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, इक्वल है. डेनोमिनेटर अगर क्या है, इक्वल है, तो हम कंपेयर करेंगे किसको, न्यूमरेटर को. और जिस जो न्यूमरेटर लार्जर होगा वही क्या होगा, टोटल फ्रैक्शन क्या होगा, लार्जर होगा. लेट्स सी 5/6 एंड 2/6 बोथ हैव सेम डेनोमिनेटर. और अगर डेनोमिनेटर सेम है तो हम कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को. न्यूमरेटर किसका ज्यादा है, 2 या 5? 5 का ज्यादा है. इट मींस 5/6 इज ग्रेटर देन 2/6. ठीक है. लेट्स सी 3/6 और 0/6 ले लेता हूँ. जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ तो 0 ही आएगा. लेट्स सी बोथ हैव डेनोमिनेटर इज 6, सेम डेनोमिनेटर है. देन वी कंपेयर द न्यूमरेटर. 3 and 0, which one is greater? 3 greater than 3/6 is greater than 0. Same as next part is, let's see. 1/6 and 6/6 both have same denominator. Then we compare numerator. 1 and 6, which one is greater? 6 greater than 6/6 is greater than 1/6. Same as 8/6 and 5/6 both have same denominator. Then we compare numerator. 8 and 5, which one is greater? Which one is greater? 8 is greater. Then 8/6 is greater than 5/6. ठीक है. Let's see next. 1/10, 2/10, 3/10 and 4/10 all have same denominator. Then which one is greater? 4 greater. Then largest is 4. Then 3. Then 1 or smallest is 1/10. ठीक है, हो जाएगा. Let's see the next point is comparing unlike fraction. Unlike fraction को क्या करना है, compare करना है. We have further divided into two parts. Comparing fraction with the same numerator. अगर numerator क्या है, same है, then how we compare? Let's see. 1/3 and 1/5. The greater fraction will have the larger amount of the whole shaded. ठीक है. तो क्या रखा है, 1/3 and 1/5 both have same denominator. क्या है, denominator same है. अगर denominator सॉरी numerator अगर same है तो then हम compare करेंगे किसको, denominator को. और denominator में जो बड़ा होगा ना वही numbers क्या होगा, छोटा होगा. It means denominator में अगर numerator same है तो denominator में कौन बड़ा है, 3 या 5? 5 बड़ा है. 5 बड़ा है, it means 1/3 क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, 1/5 से. ठीक है. यानी अगर डेनोमिनेटर को अगर मेरे को कंपेयर करना है तो जो नंबर बड़ा होगा वही नंबर, वही फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होगा. लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. फॉर एग्जांपल
For fraction having same numerator, किसी नंबर के पास फ्रैक्शन के पास न्यूमरेटर सेम है, the fraction with the lowest denominator is the greater number. जिसका डेनोमिनेटर क्या होगा, लोएस्ट होगा, वही क्या होगा, ग्रेटर होगा. जैसे 2/5 and 2/7 both have numerator 2 which is equal. Then we compare denominator 5 and 7. Then 5 and 7 which one is largest? 7 largest. तो जो बड़ा होगा वही क्या होगा, लोवेस्ट फ्रैक्शन होगा. Then 2/5 is greater than 2/7. ठीक है. Let's see comparing fraction with different denominator and numerator. अगर denominator भी same ना हो और numerator भी same ना हो, then how we compare the fraction? Let's see 7/9 and 5/12. Then how we compare this? Let's see. क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेते 9 और किसका, 12 का. लेट्स सी कितने में गया, 3 3 3 जा 9, देन 3 4 जा, देन 3 1 जा एंड 4 और 4 1 जा. दैट एलसीएम इज 3 3 जा 9, 9 4 जा 36. तो 36 क्या आ गया, एलसीएम आ गया. अब डेनोमिनेटर को यानी 9 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि क्या आ जाए, 36 से आ जाए. तो 4, तो 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगा और 4 से ही डिवाइड करूंगा. सेम एज 12 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 36 से आ जाए. तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसी नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है. देन 7 into 4, 7 into 4 28 और 9/4 36. सेम एज 5 3 जा 15 और 12 3 जा 36. अब हम क्या सेम कर लिया, हमने डेनोमिनेटर को क्या कर लिया, सेम कर लिया. डेनोमिनेटर सेम कर लिया. अगर डेनोमिनेटर सेम है तो हम क्या कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे. अब न्यूमरेटर जो बड़ा है वही फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा. न्यूमरेटर क्या बड़ा है, 28 बड़ा है. देन 28/36 इट मींस 7/9 is greater than 5/12. Let's see. Here we would be using the technique of equivalent fraction. We would convert each of the fraction into equivalent fraction such they have become like fraction. ठीक है. Then comparing in a simple form. So here is a step दे रखे. Let's see. Find the LCM of the denominator. पहले तो LCM लेना है किसका, किसी भी दोनों denominators का. And convert each fraction into equivalent fraction. Equivalent fraction को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, सच दैट डेनोमीटर इज एलसीएम की. एलसीएम क्या है, जो एलसीएम आया है वही क्या है, डेनोमीटर है. नाउ बोथ द फ्रैक्शन आर कन्वर्टेड इनटू लाइक फ्रैक्शन. तो दोनों को क्या किस में कंपेयर किया, लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन का मतलब जिनका क्या सेम हो, डेनोमिनेटर सेम हो. सो वी कैन बी कंपेयर इजिली. देन वी कंपेयर कर सकते हैं इजिली. लेट्स सी कंपेयर 2/3 एंड 2/7. 2/3 एंड 2/7. सॉरी इधर 5/7 दे रखा है, 5/7. ठीक है. Then 5/7. Both fraction have no equal. Both fraction have no equal denominator. No equal denominator and no equal numerator. Then how we compare? Let's see. Take a LCM of both denominators. 3 and 7 both have prime number. Then the LCM is 21. LCM क्या आएगा, 21. Then 2/3 and 5/7. तो क्या करना है, इनको लाइक फ्रैक्शन करना है. तो 3 को ऐसे नंबर से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे क्या हो, इन दोनों का लाइक फ्रैक्शन हो. यानी 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 से डिवाइड करूंगा. सेम एज 7 की जगह क्या होना चाहिए, 21. एंड 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड. 2 7 जा 14 और 3 7 जा 21 एंड 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21. देन both have equal denominator. Then we compare numerator 14 and 15. Which one is greater, 15 is greater than 15/26. It means 5/7 is greater than 2/3. ठीक है. Then the next is compare 5/6 and 13/15. Let's see, take the LCM of 6 and 15. 2 2 3 ja, then 15 as it is, then 3 3 1 ja,
and 3 5 ja 15. That 5, 1 and 1. Then the LCM is 2 3 ja 6, 6 5 ja 30. Then LCM is 30. Then 5 by 6 and 13 by 15. 6 को अब किस नंबर से मेरे को मल्टीप्लाई करना है कि क्या आ जाए एलसीएम 30 आ जाए. लेट्स सी. 6 5 जा 30, इट मींस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम 5 से डिवाइड. सेम एज 15 को कितने नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगी 30 आ जाए. देन मल्टीप्लाई विद 2. तो 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है. लेट्स सी. 5 5 जा 25 और 6 5 जा 30. देन इधर 13 2 जा 26 and 15 2 ja 30. Then both have the same denominator. Then we compare the numerator. Which one is greater, 25 or 26? 26 is greater than 25. It means 26 by 30 is greater than 25 by 30. It means 13 by 15 is greater than 5 by 6. ठीक है. Then how to add fraction? Fraction को add कैसे किया जाएगा? Let's see. 5 by 3 plus 2 by 3. Then the LCM क्या आएगा 3. Then we add 5 plus 2 is 7. Then 7 by 3. See, we often come across a situation where we need to add fraction. ऐसी situation भी आएगी जहाँ हमको fraction का क्या करना पड़ेगा, add करना पड़ेगा. There is systematic procedure available for adding fraction. Let's see. It is divided into two parts. Adding like fraction. Like fraction it means जिसका क्या same हो, denominator same हो. So which one is easy and the other is unlike fraction. Let the take a deep dive into it. Let's see. Adding like fraction. How we add like fraction? Let's see. 1 by 5 and 1 by 5. Both denominator have same, that is called like fraction. Then 5 is as it is. On add the numerator 1 plus 1 is 2 by 5. Then 2 by 5 is the adding of 1 by 5 and 1 by 5. Then it is very easy. Let's see. 1 by 6 and 4 by 6 both denominator have same, then it is called like fraction. Then 6 as it is, and add the numerators 4 plus 1, that is 5. Then 5 by 6 is your right answer. Same as 9 by 11 and 1 by 11. Then the denominator is same, then 11 is as it is, then add the numerator 9 plus 1 is 10. Then 10 by 11 is your right answer. Then how we add unlike fraction? Let's see. Firstly, we need to convert the like fraction into a fraction. यानी पहले तो unlike fraction को change करना होगा किसमें, like fraction में, using the LCM. LCM का use करके of denominator and convert into each fraction into a like fraction using LCM. Let's see. And then it work like fraction. तो LCM लेने के बाद वो क्या होगा, like fraction की तरह behave करेगा. Let's check a few example to make it clear. Let's see. 1 by 2 plus 1 by 3. Then take LCM 2 and 3. 2 and 3 का अगर मैं LCM लूंगा तो दोनों क्या प्राइम नंबर. LCM is 6. LCM क्या आएगा 6 आएगा. 1 by 2 and 1 by 3. अब 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, डेनोमिनेटर 6 है 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई ऊपर भी 3 से, 3 1 जा 3, देन 2 3 जा 6. अब 3 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, डेनोमिनेटर 6 आ जाए, देन 2 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 2 से. Then 2 1 2 ja 2 and 3 2 ja 6. Let we add. Then the like fraction denominator क्या है same है. Then 6 as it is, or and add the numerator 3 plus का 2 5. Then the 5 by 6 is the adding of unlike fraction 1 by 2 and 1 by 3. ठीक है, हो जाएगा. Let's see, perform the below addition 1 by 2 and 1 by 3. Solution. एलसीएम लेंगे 2 एंड 3 का एलसीएम क्या है 6 एलसीएम. 6 एलसीएम आने के बाद सो कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है. इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मेरे को डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा. तो 2 को एलसीएम में चेंज करना है, 6 में चेंज करना है तो कितने से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी क्या 3 से मल्टीप्लाई. 1 into 3 3, देन 2 3 जा 6. Then the next 1 by 3 is, let's see. अब 3 को भी मेरे को किस में चेंज करना है, डेनोमिनेटर 6 में चेंज करना है तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2. तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देन 1 by 2
1 into 2 is 2 and 3 into 2 is 6. Then 3 by 6 or add with 2 by 6, then that is 5 by 6 is your right answer. ठीक है. Let's see how to subtract fraction. Fraction को subtract कैसे किया जाएगा. ठीक है. Let's see. We often come across a situation where we need to subtract fraction. There is a systematic procedure available for subtract fraction. It is divided into two parts. Subtracting like fraction, divide करेंगे like fraction में और then we क्या कर सकते हैं उसको subtract कर सकते हैं. Let's see. Subtracting like fraction. 5 by 6 and 3 by 6. तो like fraction है. तो like fraction denominator as it is और numerator को क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा 5 minus 3. Then 5 minus 3 is 2. Then 2 by 6 is a answer. Then how we change in simplest form? Cancel out कर देंगे 2 1 जा and then 2 3 जा and 1 by 3 the simplest form of 2 by 6. ठीक है. Let's see subtraction. Next point is the numerator subtract to prove the final fraction value. तो denominator as it is और numerator को क्या कर दूंगा मैं subtract कर दूंगा 4 minus 1 that is 3 same as denominator as it is और numerator को minus कर दूंगा 5 minus 4 that is 1 then 1 by 6 is your answer. ठीक है. Same as 11 as it is then 9 minus 1 that is 8 then 8 by 11 is your answer. ठीक है. Then कह रहा है how we subtract unlike fraction को कैसे हम subtract करेंगे. Let's see. Firstly, we need to convert the like fraction to the unlike fraction to the like fraction. कह रहा है like fraction को unlike fraction में change करना है. Let's see 2 by 3 and 1 minus 1 by 4. तो denominator को सेम करूंगा तो क्या करूंगा LCM लेना पड़ेगा 3 और 4 का अगर मैं LCM लेता हूँ let's see 2 3 as it is 2 2 जा then 2 3 as it is 1 1 ja then 3 1 and 1 then the LCM is 2 2 ja 4 4 3 ja 12 तो LCM आया 12 3 को किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि क्या आ जाए 12 आ जाए देन 4 से मल्टीप्लाई तो नीचे 4 से किया तो ऊपर भी 4 से देन सेम एज 1 by 4 अब डेनोमिनेटर को चेंज करना है एलसीएम में यानी 4 को चेंज करना है 12 से तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 3 जा 12 तो ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से देन सोल्व 2 4 जा 8 3 4 जा 12 then minus 3 1 जा 3 और 4 3 जा 12 then how we solve 12 as it is numerator को माइनस कर देंगे 8 माइनस का 3 that is 5 by 12 is your answer हो जाएगा. Let's see what is given. फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट द अनलाइक फ्रैक्शन टू द लाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा ऑफ द डिनोमिनेटर्स का एंड कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन इनटू ए लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा एलसीएम लेकर एंड देन इट वर्क लाइक फ्रैक्शन. लेट अस चेक few example make it clear. Let's see 1 by 2 then minus 1 by 3 then take LCM of 2 by 2 into 3 both have prime numbers then the LCM is 2 into 3 2 into 3 that is 6 LCM आएगा. Let's see 1 by 2 अब डेनोमिनेटर को क्या करना है सेम करना है लाइक करना है तो 2 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 6 आ जाए देन मल्टीप्लाई विद 3 देन ऊपर भी मल्टीप्लाई विद 3 नीचे मल्टीप्लाई विद 3. अब 3 डेनोमिनेटर को 6 में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से देन 3 1 जा 3 2 3 जा 6 देन सब्ट्रैक्शन 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6. अब क्या होगा लाइक फ्रैक्शन होगा तो डेनोमिनेटर सेम और न्यूमरेटर को माइनस कर दूंगा 3 minus 2 that is 1 then 1 by 6 is your right answer. ठीक है. Let's see comparison addition and subtraction of a mixed fraction. Mixed fraction को कैसे कंपेयर करेंगे. Let's see it is given 1 into 3 by 5 and 2 into 1 by 2 then how we compare
Then we solve in a proper fraction. 5 1 ja 5 for 3. 15 by 5. Then 2 2 ja 4 and 5. 5 by 4. Then take the LCM 5 and 4. 5 and 4 का अगर मैं LCM लेता हूँ 5 and 4 then 2 5 as it is 2 2 ja 4 then 2 5 as it 2 1 ja 2 then 5 5 1 ja 5 and 2 2 ja 4 4 5 ja 20 then LCM is 20 then 5 15 by 5 15 by 5 सॉरी 5 1 जा और 1 प्लस 3 8 by 5 आएगा इधर क्या आएगा 8 by 5 ठीक है इधर आएगा 5 by 4 देन टेक द एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम क्या है 20 देन 20 अब 20 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि डेनोमिनेटर सेम हो जाए देन 4 से मल्टीप्लाई इधर और 5 by 4 को 5 से मल्टीप्लाई देन 5 से डिवाइड देन सोल्व 8 4 जा 32 और 5 4 जा 20 देन ऐड 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 अब डेनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज देन 32 प्लस 25 दैट इज 32 प्लस 25 5 4 2 7 3 2 5 57 ठीक है हो जाएगा लेट वी चेक मिस्टेक होगी इधर क्या आएगा 2 आएगा इधर 2 आएगा ठीक है 2 आएगा 2 देन वी मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से डिवाइड इधर 50 बाय 20 ठीक है हो जाएगा लेट्स सी subtract mixed fraction how we subtract the mixed fraction let's see let's see 9 into 1 by 2 minus 5 into 1 by 2 change the improper fraction में change करेंगे तो 2 9 जा 18 plus 9 19 by 2 then subtraction 5 4 जा 20 plus 121 by 4 ठीक है then solve take LCM LCM आएगा 4 then 2 को 4 में change करूंगा तो 2 से multiply और 2 से divide 19 2 जा 38 और 2 2 जा 4 then 21 by 4 as it is then LCM is 4 then 38 minus 21 that is 17 then 17 by 4 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना तो 4 4 जा 16 then 1 then रिमाइंडर ऊपर आएगा 4 नीचे और जो कोएफिशिएंट है वो भी 4 then 4 into 1 by 4 is your answer ठीक है let's see the next part two mixed fraction can be added or subtracted by adding or subtracting the whole number कह रहा दो मिक्स फ्रैक्शन को ऐड कर कर सब्ट्रैक्ट करके किसी भी whole नंबर में से टू फ्रैक्शन को एंड देन ऐड और सब्ट्रैक्ट एंड द फ्रैक्शन पार्ट आर टुगेदर लेट्स सी two mixed fraction can also be converted into a improper fraction दो mixed fraction को improper fraction में convert कर कर और then we क्या करेंगे ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट let's see 1 into 1 by 2 plus 2 into 1 by 3 and 2 1 ja 2 plus 1 5 by 2 add with 3 2 ja 6 and 7 by हम इस तरीके से सोल्व कर ही सकते हैं ठीक है जैसे कि हमने पीछे किया लेकिन इसको कैसे सोल्व करें वोल नंबर को ऐड करेंगे पहले 1 इधर वोल नंबर है 1 और इधर वोल नंबर है कितना 2 देन द फ्रैक्शन बचा 1 by 2 एंड फ्रैक्शन बचा 1 by 3 ठीक है तो 2 plus 1 that is 3 then we add 2 by 3 and 1 by 3 how we add let's see एलसीएम लेंगे 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा add with 1 by 2 plus 1 by 3 एलसीएम आएगा 6 then 3 plus 6 एलसीएम है तो 1 by 2 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड then 3 1 जा 3 by 6 सेम एज 1 by 3 को भी
2 से multiply, 2 1 जा 2 and 3 by 2, then the answer is 3 plus 3 by 6 and 2 by 6. Then add 3 as it is, LCM 6 आ गया, तो 3 plus 2 इधर 5 by 6, ठीक है. Then take LCM, then the answer is, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 3 into 5 by 6 is your answer. ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं. लेक लेकिन जो सेकंड वे दे रखा है, लेट्स सी वी कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर, लेट्स सी 1 into 1 by 2 plus 2 into 1 by 3. 2 1 जा 2 plus 1 3 by 2 plus 3 2 जा 6 plus 1 7 by 3. लेट टेक एलसीएम 2 एंड 3. 2 एंड 3 का एलसीएम आएगा क्या, 6. 6 एलसीएम आएगा तो मेरे को डिनोमिनेटर क्या करना है, 6 करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से. देन 3 डिवाइड बाय 2, 6 से चेंज करना तो 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड, एज इट इज 7 बाय 3. अब 3 को किस में चेंज करना है, 6 में, देन 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, लेट्स सी 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 प्लस 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6. देन आंसर इज 99 प्लस 14 इज 23 बाय 6. ठीक है, देन इसको किस में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में. लेट्स सी 23 बाय 6, 6 3 जा 18, then subtract 13, 13 minus 8, that is 5. then the remainder को कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर कीजिएगा, और क्वेश्चन जिसे मल्टीप्लाई किया है that is 6, डिवाइड किया है, आंसर इज 3. and 3 into 5 by 6 is a mixed fraction. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं. लेट्स सी फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को किस फॉर्म में पढ़ा, फ्रैक्शन होता क्या है, जो किसकी फॉर्म में, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में, उसको क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे. देन एडिशन ऑफ ए लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन को इजी वे से सोल्व कर सकते हो, और अनलाइक फ्रैक्शन को क्या करेंगे, एल्स में लेके क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन है तो डेनोमिनेटर सेम और न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अनलाइक फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेके डेनोमिनेटर के क्या करेंगे, पहले सेम करेंगे. ठीक है, फ्रैक्शन की टाइप पढ़ी हमने, लाइक फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. कंपेयरिंग फ्रैक्शन, कंपेयर कैसे करेंगे, अगर अनलाइक फ्रैक्शन है, अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो पहले उसको किस में चेंज करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करोगे, देन इजी क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स सी द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्शन, एमसीक्यू. लेट्स सी क्वेश्चन फर्स्ट. 2 by 5 plus 3 by 10 plus 11 by 20 is equal to, take LCM 5 10 and 20. Let's see LCM of 5 10 and 20 is 2, then 5 as it is, 5 ja 10, 10 ja, then 2, 5 as it is, 5 as it is, 2 5 ja 10, then 5, that is 1 1 and 1. then the LCM is 2 to ja 4, 4 5 ja 20, then LCM is 20. ठीक है, अब 2 बाई 5, अब 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि जो एलसीएम, जो डिनोमिनेटर एलसीएम के सेम हो जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड. सेम एज 3 बाई 10 एज इट इज, 10 डिनोमिनेटर को 20 में चेंज करना है तो 2 से मल्टीप्लाई. सेम एज 11 बाई 20, ये तो है ही 20, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है. 2 4 जा 8 बाई 20, देन 3 2 जा 6 बाई 20, देन 11 बाई 20. then denominator same like fraction 20 as it is, numerator को ऐड करेंगे 8 plus 6, 8 plus 6 plus 11, then we add 8 plus 6 14 plus का 11, that is 25 by 20. that the right answer is part A. ठीक है, let's see question number second. कह रहा है which of these make a wall. तो wall क्या बनाएगा, two halves को wall बताएगा, then two half is your right answer. Let's see
गिव ए प्रॉपर फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 7, यानी न्यूमरेटर क्या है 5 और डिनोमिनेटर क्या है 7, तो ऊपर लिखे जाने वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे लिखे जाने वाला डिनोमिनेटर। देन आंसर इज 5 by 7 यानी पार्ट बी। Then the next question is mixed fraction is as a improper fraction। तो improper fraction निकालना है mixed fraction का 2 into 13 by 19। Then denominator की multiply करूंगा किससे, whole number से, और add कर दूंगा किसको, numerator को, और then denominator divide। तो 19 to या 38, then plus 3 divided by 19। Then 38 plus 3 that is 41 divided by 19। Then the right answer is part B। Then the next question is what is the simplified form of the product? Correct 12 by 24 and 36 by 72 की simplest form निकालेंगे पहले, फिर उनका क्या करेंगे प्रोडक्ट। लेट्स सी, कैंसिल आउट करते 12 1 जा 12 2 जा, देन द इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1 by 2। लेट्स 12 3 जा 12 6 जा, देन 3 1 जा और 3 2 जा, then 1 by 2 and 1 by 2 का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। then 1 into 1 1 और 2 2 जा 4, then the 1 by 4 is your right answer। ठीक है, let's see question number 6। the identity x plus 3 इक्वल दे रखा है भाई x plus 4 then equal to x square plus 7 plus 12। कह रहा है x की वैल्यू इज ट्रू फॉर, x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू इधर कुछ भी हो सकती है, तो ऑल वैल्यू ऑफ द x, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ऑल वैल्यूज ऑफ द x। Then the next question is what do you call fraction with different denominator? अगर कोई fraction है, अगर उसका denominator क्या है, different है, denominator क्या है, different है, denominator different है, तो उसको क्या बोलेंगे, unlike fraction। if the numerator and denominator of fraction are equal, numerator और denominator अगर same है, मान लेता हूँ numerator 2 है, denominator भी क्या हुआ 2 और same है, then the fraction is 2 by 2, then we cancel out, that is 1, then equal to 1, then answer is part B। Then the ninth question is mixed fraction of 17 by 9। 17 by 9 का mixed fraction निकालना, let's we divide 17 by 9। Let's see 9 1 जा 9 1 पे गया, 9 1 जा 9, इधर कितना बचा, let's see 8, कितना बचा 8। then the denominator को, सॉरी पर लिखेंगे 8 डिवाइड बाय 9 इंटू, रिमाइंडर को कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, तो 1 इंटू 8 बाय 9, 1 इंटू 8 बाय 9। ठीक है, हो जाएगा, तो none of these। Let's see the next question। A fraction with numerator 1 is called, वो फ्रैक्शन, वो नंबर जिसका न्यूमरेटर क्या हो 1 हो, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो 1 हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। A two-digit number is such that प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 8, टू डिजिट का नंबर है, टू डिजिट नंबर मान लेता हूं मैं y या फिर x, y x मान लेता हूं, जिसके वंस प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे क्या है y है। प्रोडक्ट क्या है, 8 प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट क्या है 8 है। when 1 8 is added to the number, 1 8 अगर ऐड किया जाए इस नंबर के, then the digit is reverse, रिवर्स हो जाते हैं। तो ये डिजिट क्या है, वंस प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे क्या है y, तो 10y। ठीक है, कह रहा है इफ वी ऐड 8, अगर मैं 8 सॉरी व्हेन वी 18 इज एडेड टू, अगर 18 इसमें ऐड कर दिया जाए, 18 क्या कर दिया जाए, ऐड किया जाए, नंबर क्या है x इंटू वाई, प्रोडक्ट करता हूं तो क्या आता है 8 आता है। कह रहा है 18 अगर ऐड कर दिया जाए, लेट्स सी 18 अगर ऐड कर दिया जाए तो नंबर क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, यानी x के प्लेस पे वंस प्लेस पे x था वो तो आ जाएगा टेंस प्लेस पे, और y जो वंस प्लेस टेंस प्लेस पे आ जाएगा वो वंस प्लेस पे, तो वंस प्लेस पे आ गया y और टेंस प्लेस पे आ गया क्या
x यानी 10x. Then we solve 10y plus x plus 18 is equal to 10x plus y. Then solve 10x इस साइड आएगा माइनस का, देन 10y और y इस साइड आएगा भी माइनस का, 10x तो प्लस x माइनस 10x इक्वल बचा माइनस 18, इस साइड 18 इस साइड आएगा माइनस 18, देन 10y माइनस y दैट इज 9y, x माइनस 10x माइनस 9x इक्वल टू माइनस 18. यहाँ माइनस कॉमन ले लूंगा तो इधर बचा 9x, ये हो गया माइनस 9y, इधर आ गया प्लस 18. ठीक है, एज वी कंपेयर इक्वल क्या दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो दोनों साइड में 4 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 4xy इक्वल होगा 8 4 जा 32, यानी 4xy इक्वल टू 32. ये इक्वेशन मान लेता हूँ फर्स्ट, ये इक्वेशन मान लेता हूँ सेकंड. देन वी ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा ऐड करूंगा. पहले ये सोल्व कर लेते हैं इधर, लेट्स सी. 9 कॉमन ले लिया, 9 कॉमन लेने के बाद x माइनस वाई इक्वल टू 18, देन x माइनस वाई इक्वल टू ये साइड आगे डिवाइड x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2. देन स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, इधर स्क्वायर करते दोनों साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy इक्वल टू 4, क्या है 2x माइनस इक्वल टू 4. देन ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इक्वेशन नंबर थर्ड को मैं ऐड करूंगा कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 4xy प्लस 32. देन ऐड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2xy प्लस 4xy इक्वल टू 4 प्लस 32. देन वी सोल्व, इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4xy में 2xy गया तो प्लस 2xy इक्वल टू 36. देन ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 36. देन स्क्वायर इस साइड आएगा रूट, देन x प्लस वाई इक्वल टू 6, एंड एक इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू 2. देन कंपेयर, ऐड करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 2, देन y माइनस वाई कैंसिल आउट, प्लस वाई x प्लस x 2x इक्वल टू 3 6 प्लस 2 दैट इज 8. x की वैल्यू क्या आ गई 4, अगर x 4 है तो पुट द वैल्यू फॉर 4 इन दिस इक्वेशन, अगर x 4 है तो माइनस के y इक्वल टू 2, 2 इस साइड आएगा माइनस का, तो इस साइड आएगा माइनस का 4 माइनस 2, और y इस साइड जाके प्लस का, देन y की वैल्यू क्या आ गई 2. देन द नंबर क्या था yx, नंबर क्या था yx, तो yx है, इट मींस y की वैल्यू कितनी है 2 और x की वैल्यू 4. देन द आंसर इज 24. देन द आंसर इज 24. ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12. Let's see question number 12. What is given? Question number 12. A Phillips is a number representing part of a wall. कह रहा है ए फिलप्स, ए नंबर फिलप्स इज ए नंबर, वो नंबर रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ ए वॉल, वॉल को, किसी भी वॉल को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड. वेट अ सेकंड. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13.
By how much is 19 by 20 and 2 by 20? Which one is greater and how much? कितना ज्यादा है वो काउंट करेंगे. लेट्स सी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. टेक एलसीएम. एलसीएम क्या आएगा? 20 एंड 20 का एलसीएम लो. 20 एलसीएम लेता हूँ 20 का. देन 19 माइनस 2 दैट इज कितना बचा? 17 बाय 20. देन 17 बाय 20 इज योर राइट आंसर यानी पार्ट सी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is a fraction form of the 5/18th? 5/18th, 5/18th, 5/18th. Then the answer is part C. Let's see the next question. Match of the following. Match of the following there रखा है. Let's see. How many boxes are there? 4 or 5? 5 boxes are there. Then total boxes 5. And how many colorful? 4 colorful. Then 4 by 5 is the right answer. Then one part का क्या आंसर होगा? D. फर्स्ट का D. देन सेकंड का निकालेंगे. टोटल बॉक्सेस कितने हैं काउंट करो. हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Total are 9 boxes. And how many colorful? 3 4 and 5. Then answer is 5 by 9. ठीक है. Let's see part third. How many boxes are in there? 6 boxes. How many colorful? 1 2 3 6 boxes are color. Then we cancel out 3 1 ja and 3 2 ja. Then the simplest form is 1 by 2. Then the simplest form is 1 by 2. Then third part का आंसर होगा क्या? B. Then the fourth part is total कितने boxes हैं? 3 boxes हैं, 1 colorful, then 1 by 3. यानी C part is right answer. ठीक है. Let's see filling the blanks. There is a large box of 36 small square boxes. ठीक है. तेरा एक लार्ज बॉक्स है जिसके अंदर कितने बॉक्सेस हैं? 36 स्मॉल बॉक्सेस हैं. ठीक है. कह रहा है 1/2 ऑफ इट. 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ 36 बॉक्सेस. देन वी कैंसिल आउट 2 1 जा 2 18 जा. देन 1/2 ऑफ द बॉक्सेस इज राइट आंसर इज 18. देन द पार्ट सेकंड इज 2/3 ऑफ मल्टीप्लाई इट. कितने बॉक्सेस का? 36 का. देन वी कैंसिल आउट 3 1 जा. देन 3 2 जा. तो 12 2 जा 24. इट इज योर राइट आंसर. देन if you make a bench of 20 small boxes, तो टोटल बॉक्सेस है 36 और बेंच बनाया कितने का? 20 का. then the fraction is 20 by 36. then we cancel out 2 10 ja 2 18 ja. then we cancel 2 5 ja or 2 9 ja. then the right answer is 5 by 9. The next question is Phillips boxes are required if fraction is 5 by 6. कह रहा है fraction अगर 5 by 6 हो जाता है. Let's see how we solve. So let's see. करेक्ट बॉक्सेज आर रिक्वायर्ड. कितने बॉक्सेज की अगर रिक्वायरमेंट होगी अगर फ्रैक्शन क्या हो जाए 5/6. टोटल बॉक्सेज हैं कितना? 6. 36. तो 36 को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने? 6 में. यानी 36 को डिवाइड किया किससे? 5 से. किससे? 5 से डिवाइड करने पे तो 36 आया ना. अब किस नंबर को मैं डिवाइड करूं 5 से कि 5 आ जाए? तो 25 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे? 5 से तो क्या आएगा? 25 आएगा. क्या आएगा? 25. सॉरी 36 दे रखा है.
5/6 की फॉर्म में लिखना है तो 30 दे रखा है भाई, इधर कितने बॉक्सेज हैं? 36 बॉक्सेज है, ठीक है। देन 5/6, ठीक है, हो जाएगा। देन ट्रू फॉल्स, इफ a and b are two integers such that a greater than b, कह रहा है अगर a greater than है b से, क्या माइनस a greater than होगा माइनस b से? नहीं, it is false, ठीक है। लेट्स सी, a की वैल्यू मान लेता हूँ 2 और b की वैल्यू है 1, तो a ग्रेटर देन है b 1 से, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ, क्या -2 ग्रेटर देन होगा -1 से? नहीं, -1 ज्यादा होगा, कि माइनस में जो नंबर जितना ज्यादा बड़ा होता है उतना ही क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। Let's see the question part number second. Second question में क्या दे रखा है? In 3/7, three parts of the wall. तो थ्री पार्ट्स क्या होंगे? वॉल होंगे, बिल्कुल राइट आंसर है, that is true. That is true. Let's see the next question. On a number line, 2/7 is the right of the zero. तो जीरो इधर है, जितने पॉजिटिव इंटीजर होते कहाँ होते हैं? राइट साइड होते हैं, तो इट मीन्स इट इज ट्रू। देन कह रहा है 2/5 is smaller than 1/5. 1/5 और 2/5 में से कौन सा छोटा है? लेट्स सी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही क्या होगा, बड़ा। इट मींस 2/5 क्या है, बड़ा है 1/5 से। एंड 2 क्या रखा है, 2/5 स्मॉलर 1/5 से, जो कि गलत है, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 28/45 का जो एंड 3/5 रिप्रेजेंट होने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कह रहा 3/5 और 25/8 दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेट्स कैंसिल आउट हो रहा है ये, लेट्स सी, ये कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा किसी से, इट मीन्स क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और ये भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्या दोनों सेम है? नहीं, इट मींस ये फॉल्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। हाउ वी solve? Let's see what is given. It is given that solve 16/5 minus 7/5, then 5 क्या है, like fraction तो same 5 as it is, then 16 minus 7, 16 minus 7, that is 9/5, then the right answer is 9/5. Then the second question is color the part according to 3/4, तो 3/4 को कवर करना है। अब टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4, तो एक बॉक्सेज के अंदर टोटल पार्ट्स कितने होंगे? 4, और उसमें से कलरफुल कितने हैं? 3 पार्ट्स कलरफुल है, तो 1 2 एंड 3, दैट इज योर आंसर, ठीक है। लेट्स सी पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज गिवन? लेट्स सी, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/5 हैव numerator 2/7। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है किसका? 3/5 का, जिसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 2/7 होना चाहिए। लेट्स सी, न्यूमरेटर 2/7, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/5, 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, ठीक है। 2/7 नहीं आएगा इधर, 27/45 होगा। तो कह रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैवी न्यूमरेटर ये होना चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? 9 3 जा एंड 9 5 जा, तो 3 9 जा 27 और 9 5 जा 45 इज योर राइट आंसर, ठीक है। रीराइट द फ्रैक्शन इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, 8/6, 8/6 को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखता हूँ, लेट्स कैंसिल आउट, 2 4 जा 2 3 जा 6, एंड 4/3 is the simplest form, then 44/72, let's cancel out 2, 2 2 जा 4, then 2 3 जा 6, 1 carry 12, 2 6 जा 30, sorry 2 6 जा 12, then cancel 2 1 जा, then 2 1 जा, then cancel out 2 1 जा 1 carry 16, 2 8 जा, then 11/18 is the simplest form of 44/72, ठीक है। Let's see the question number 5th. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, 19/6 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, 19/6 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है,
तो 6 2 जा 18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, कितना बचा 1, तो रिमाइंडर 1 बचा, तो रिमाइंडर को लिखूंगा ऊपर, और इसे डिवाइड किया 6 नीचे और 3 इधर, तो मिक्स फ्रैक्शन इज 3 into 1/6। लेट्स सी शो ऑन 10/10 ऑन ए नंबर लाइन। 10/10 को अगर नंबर लाइन में शो करता तो कैंसिल आउट होगा, क्या गया 1। 1 को नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, 1 को नंबर लाइन में शो करेंगे 0 एंड 1, 1 इज ऑन नंबर लाइन, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रैक्शन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म 6/7, न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर अगर 84 है, अगर न्यूमरेटर क्या है 84 है, अगर न्यूमरेटर 84 है, अगर 84 की फॉर्म में लिखा गया तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मैं 84 आ जाए। लेट्स सी, 84 को डिवाइड कर लेता हूँ 6 से, 6 1 जा कितना बचा 2, 6 4 जा 24, देन 14 से, सेम एज 17 को भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे, 14 से, ठीक है। लेट्स सी 14 into 7, 14 into 7 8 to carry, then 98, then denominator is 98, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट इसको कैसे करेंगे, लेट्स सी, टोटल कितने बॉक्सेज हैं, 7 बॉक्सेज हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, जिसमें कलरफुल कितने 7, तो 1 2 6 कलरफुल है, 2 3 4 5 एंड 6 इज योर राइट आंसर। देन बी पार्ट, फ्रैक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें न्यूमरेटर क्या हो 5 हो और डिनोमिनेटर क्या हो 6 हो, ठीक है। तो ग्रामेटिकली कैसे के लिखेंगे, लिखो ड्रामेटिकली, टोटल कितने बॉक्स हैं 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, कलरफुल कितने होने चाहिए 5, 1 2 3 4 एंड 5, सेम एज 9 2 जा 18 एंड 5 2 जा 10, तो डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में 10 की फॉर्म में, तो न्यूमरेटर भी एज इट इज 18, तो कितने बॉक्सेज होंगे 10 होंगे, ठीक है, कर लेना। Let's see the next question number 8. What is given? Represent the following fraction on a number line. Number line पे show करना है किसको, following fraction को। Let's see 1 and 5. Then 1/5 is in between 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। That is 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 and 1/6, then 1/5 this, ठीक है, हो जाएगा। सेम एज 3/5, सेम एज 3/5, 0 1, देन 1 बाय, सॉरी 0 से और 5 के बीच में, यहाँ 5 आएगा, 1/5, 2/5, 3/5, देन 4/5, 6/5, एज इट इज 1/5, ठीक है। सेम एज 1/5, 2/5, 3/5, देन 4/5, 5/5, 6/5, 9/5, ठीक है। इस तरीके से कैंसिल आउट करें क्या आएगा 3/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फ्रैक्शन शोइंग द शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस, कितने कलरफुल है 1 कलरफुल है, देन द फ्रैक्शन इज 1/4। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट बी, हाउ मेनी बॉक्सेस आर इन देयर 3 और 3 कितने बॉक्सेस हैं 6 बॉक्सेस हैं, देन कितने कलरफुल है 1 एंड 2 कलरफुल है, देन 2/3 इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस बॉक्स, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ऑल द नेचुरल नंबर 1 to 15, 1 to 15 के बीच में नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो 1 to 15 के बीच में नेचुरल नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द प्राइम नंबर, तो टोटल कितने नंबर है, टोटल देखेंगे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
कह रहा हाउ मेनी आर प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 6 11 and 13. Let's count 1 2 3 4 5 and 6, then the 5 by 13 is a fraction of this question. ठीक है, हो जाएगा. Let's see the question number second, sorry, question number first of short question. Let's see what is given. It is given that write the following fraction in ascending order: 2 by 3 and 2 by 7 and 2 by 11 and 2 by 5 and 2 by 9. तो इसको किसके फॉर्म में लिखना है, असेंडिंग फॉर्म में लिखना है. लेट्स सी, 2 सब में क्या है, सेम है. इट मींस न्यूमरेटर क्या है, सबका सेम है. तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो देन डेनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं, और डेनोमिनेटर में जो सबसे छोटा नंबर डेनोमिनेटर होता है वही क्या होता है, सबसे बड़ा होता है. और जो सबसे बड़ा होता है डेनोमिनेटर वही सबसे क्या होता है, छोटा होता है. लेट्स सी, न्यूमरेटर सबका 2 है. देन वी कंपेयर डेनोमिनेटर 3 7 11 5 और 9. सबसे बड़ा न्यूमरेटर क्या है, 9 है, तो इट मींस ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा. देन 2 by 9. देन उससे छोटा क्या है, 2 by 11 है भाई, 2 by 11. देन 2 by 9. देन 2 by 7. देन 2 by 5 और देन 2 by 3. दैट इज योर आंसर. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 3 प्रॉपर एंड 3 improper फ्रैक्शन ऑफ डेनोमिनेटर 7. अगर किसका डेनोमिनेटर क्या हो, 7 हो, तो 3 प्रॉपर फॉर्म में लिखना है और 3 improper फॉर्म में लिखना है. प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट्स सी. 3 पार्ट्स. प्रॉपर फॉर्म मैंने बताया था, क्या होता है प्रॉपर फॉर्म, यानी जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, न्यूमरेटर जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, कम हो, किससे, डेनोमिनेटर से. कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, 2 by 7 3 by 7 and 4 by 7. It is a proper form in which the denominator is 7. Then improper form यानी जिसमें क्या हो, न्यूमरेटर ज्यादा हो, किससे, डेनोमिनेटर से. यानी 11 by 7 लेता हूँ, 12 by 7 ले लेता हूँ और 13 by 7. ठीक है, यानी 7 से बड़ा होना चाहिए सिर्फ. ठीक है, हो जाएगा. Then the next question is कंपेयर द फॉलोइंग 4 by 5 and 5 by 6. कंपेयर करने से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा. डेनोमिनेटर अगर सेम करूंगा तो पहले क्या लूंगा, एलसीएम. 5 और 6 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, 5 1 जा, देन 6 2 1 3, देन 3 जा, है ना. 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, देन एलसीएम क्या आ गया, 30. अब 30 अगर एलसीएम है तो 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि उसका डेनोमिनेटर क्या हो जाए, 30 हो जाए, तो 6 से. देन 6 से मल्टीप्लाई ऊपर और 6 से नीचे. देन 6 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 30 हो जाए, देन 5 से. देन 6 4 जा 24 बाय 30, और ये इधर आ गया 5 5 जा 24 बाय 30. देन डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करूंगा, न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, 25 बड़ा है, तो 25 बाय 30 इज ग्रेट. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड. लेट्स सी 3 by 4 and 2 by 5. Compare these 3 by 4 and 2 by 5. तो एलसीएम लेंगे 5 और 4 का, 5 और 4 का एलसीएम लिया, कितना आएगा, 24 एलसीएम आएगा. अब 4 को कितने नंबर से जो है मल्टीप्लाई किया जाए कि 24 आ जाए. देन 3 by 4 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 से डिवाइड करता हूँ, सेम एज, सॉरी 20 आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 20 एलसीएम आएगा. देन 4 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 20 आ जाए, 5 से मल्टीप्लाई. सेम एज 5, डिनोमिनेटर को 20 करना है तो कितने से मल्टीप्लाई, 4 से. एंड ऊपर भी और नीचे भी ऐड करेंगे, 5 3 जा 15, 4 जा 20, प्लस 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20.
देन एलसीएम क्या है 20, देन ऐड 15 प्लस का 8 23, देन आंसर इज 23/20। ठीक है, हो जाएगा। Let's see the next question. Question number 4. What is given? It is given that find the sum of 1 into 2 by 3 and 3 into 2 by 5. Let's see how we solve. How we solve. मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है 1 इंटू 2/3 और 3 इंटू 2/5 को क्या करना है, सम करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करूंगा, 3 1 जा 3 प्लस का न्यूमरेटर कितना है 5/3, देन वी ऐड 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17/5। देन सेम करूंगा किसको, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर को सेम करूंगा तो एलसीएम क्या आएगा 5 15 एलसीएम आएगा, 15 एलसीएम आएगा तो 5/3 तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 आए तो 5 से मल्टीप्लाई। सेम एज 17/5 को किससे मल्टीप्लाई करो, 15 आए 3। देन सोल्व 5 5 जा 25/3, देन वी ऐड 7 3 जा 51/5, then we add denominator same with 5 as it is, then we add 25 plus 51, then it is 5 plus 1 6 और 5 और 2 76/5 is your right answer। ठीक है, हो जाएगा। सेम एज सब्ट्रैक्ट करना है 2 into 3/4 को from 4 into 1/8 से। लेट्स सी हाउ वी सोल्व। लेट्स सी subtract 2 into 3/4 from 4 into 1/3। 4 into 1/8 में माइनस करना 2 into 3/4 को। लेट्स सी 4 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8, देन सब्ट्रैक्ट 4 2 जा 8 8 प्लस 3 11/4। अब एलसीएम आएगा 8, अब 8 एलसीएम आएगा तो सेम एज इट इज, तो 33/8 एज इट इज। अब 4 को किस में चेंज करना है 8 में, यानी 11/4 को अगर 8 में चेंज करना है 2 से मल्टीप्लाई। Then we solve 33/8 as it is minus 11 into 2 22, 4 2 ja 8, then the LCM आ गया 8, then 33 minus 23 that is 10/8 is your right answer, sorry 11/8 is your right answer। ठीक है, हो जाएगा। कंपेयर करना है, लेट्स सी 6/7 एंड 5/7, तो क्या है डेनोमिनेटर सेम है, डेनोमिनेटर सेम है तो किसको कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर को अगर कंपेयर करेंगे तो 6 एंड 5, so which one is greater, 6 greater than the fraction 6/7 is greater than 5/7। The next part is क्या सेम दे रखा है, न्यूमरेटर सेम दे रखा है। अब न्यूमरेटर सेम दे रखा है तो डेनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे। डेनोमिनेटर में जो छोटा होता है वही क्या होता है, बड़ा होता है। छोटा 12 है तो बड़ा क्या होगा, यही होगा। ठीक है, सेम एज न्यूमरेटर दे रखा है सेम, देन वी कंपेयर द डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर इज 7 and 8, which one is smaller, 7 छोटा है तो 3/7 is greater than 3/8। ठीक है, let's see question number first of long question। Let's see how we solve। Find the difference between the greatest and the smallest fraction। greatest और smallest fraction में difference निकालना। let's see greatest कौन सा होगा, 5 3 जा 15, 15 और 3 18/5, then 2 7 जा या फिर 7 2 जा 14 प्लस 4 18/7, then 19/6, then 18/8। ठीक है, इन सभी को कंपेयर करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, पहले एलसीएम लूंगा 5 7 6 और 8 का। लेट्स सी, ठीक है, एलसीएम ऑफ 5 6
or 7 or 8? Let's see. 2 पे 5 as it is 3 जा 7 as it is then 4. ठीक है, then फिर 2 पे 5 as it is 3 as it is 7 as it is 2, then फिर 2, then 5 as it is 3 as it is 7 as it is or 1, then फिर 3 5 as it is 1, then 7 or 1 as it is, then फिर 5, then 5 1 as it is 1 or 7 7 as it is, then 1, then फिर 7, let 1 1 1 or 1, then the LCM is 2 2 ja 4 4 2 ja 8 8 3 ja 12 12 5 ja 60 into 7. Let's see. 7 6 ja 42 0. Then the LCM is 420. Let's see how we solve. Let's wait a second. 2 2 ja 4 4 2 ja 8 8 3 ja 24. क्या आएगा 24 into 7 5 ja 35. Let's see. LCM में mistake है. Let's see. I will check. 2 2 ja 4 4 2 ja 8 8 into 3 into 5 into 7. 8 3 5 ja 35 into 7. 8 7 ja 56 into 35. लेट्स मल्टीप्लाई 56 into 35 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो क्या आएगा 840. क्या आएगा 840. देन वी सोल्व द एलसीएम इज 840. एलसीएम क्या आया 840 एलसीएम है. देन लेट्स सी. एलसीएम 840 तो मैं क्या करूंगा अब डेनोमिनेटर को सबको क्या करूंगा सेम करूंगा. सबके डेनोमिनेटर को क्या करूंगा सेम करूंगा. लेट्स सी हाउ वी सोल्व. ठीक है, लेट्स सी. 840. अब 18 बाई 5 5 को अगर मेरे 840 में चेंज करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लेट्स सी. डिवाइड कर लूंगा 840 डिवाइड बाई 5 दैट इज 5 1 जा 3 कैरी 5 6 जा देन 4 कैरी 5 8 जा यानी 168 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, यानी 18 बाई 5 मल्टीप्लाई विद 168 डिवाइड बाई 168 देन इट इज 3024 डिवाइड बाई 840. ठीक है, सेम एज 18 बाई 7 7 को 840 में चेंज करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 120 से. तो 18 को 120 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2160 डिवाइड बाई 840. सेम एज 19 को 84 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा 140 से. अगर इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 140 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 2660 डिवाइड बाई 840. सेम एज 18 का अगर मैं निकालूं क्या आएगा 189084. देन वी कंपेयर विच वन इज ग्रेटर. ग्रेटर इज दिस एंड स्मॉलर इज दिस. देन द डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस कैसे निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे. लेट्स सी. लेट्स सी. लेट्स वी सब्ट्रैक्ट 3024840 सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट क्या है स्मॉलेस्ट है 1890840. ठीक है, तो 840 एज इट इज. तो 3024 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से जो आएगा वही क्या होगा हमारा आंसर होगा. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर सेकंड. व्हाट इज गिवन. सिमरन painted 2 by 3 of a wall space in a room. तो सिमरन
painted the wall in room, कितना पेंट करता हो 2/3, ठीक है। हर ब्रोदर राहुल हेल्प, राहुल कितना पेंट करता है, राहुल पेंटेड 1/5, राहुल पेंट करता है 1/5। मैंने कह रहा हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर, तो दोनों ने मिलकर कितना पेंट किया, तो 2/3 प्लस कितना 1/5, देन वी ऐड टेक एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 15, 15 अगर एलसीएम है तो 3 को 15 में चेंज करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, सेम एज 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर तो 3 से मल्टीप्लाई, देन 2/3, 2 5 जा 10/15 और इधर 3 1 जा 3 बाय में 15, देन आंसर इज 10 प्लस 3 13 बाय में 15। इट मींस टोटल पार्ट थे 15 और कितना पेंट कर लिया उन्होंने 13 पेंट कर लिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ द वॉल स्पेस इज लेफ्ट, लेफ्ट पूछे रिमाइंड पूछे तो तब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पुट आउट करे तो 1 में से क्या करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस, यानी 13/15। देन टेक एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 15, देन 15 माइनस 13 दैट इज 2/3, 2/15। यहाँ से भी हम कर सकते थे कि 15 टोटल पार्ट्स थे कितने 15, लेकिन 13 उसने क्या कर लिए पेंट कर लिए, तो बचे कितने पार्ट्स 2 पार्ट्स बचे ना, तो 2/15 भी हम यहाँ से क्या कर सकते थे फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। लेट्स सी assertion and region, let's see what is given -3/7 obtained when we divided a whole into 7 equal parts and take 3 parts। कह रहा -3/7 कहाँ से मिलेगा 3/7 is obtained when we divide a whole number into 7, whole number को 7 parts में divide करता हूँ 7 equal parts and take 3 parts apart, 3 parts को बाहर निकाल लेता हूँ तो क्या आएगा 3/7, बिल्कुल राइट है। देन द सेकंड रीजन इज ए फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द वोल, तो एक फ्रैक्शन है जो कि रिप्रेजेंट करता है वोल पार्ट्स, वोल के पार्ट्स को, तो बिल्कुल राइट है। तो बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन द आंसर इज ए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज -5/2 minus 5/2 is obtained when we divided a whole number into 5 equal parts and 3 parts। तो कह रहा है 5/2 तब obtained होगा जब 5 parts को मैं किस में obtained करूंगा 3 parts में और 2 parts में, लेकिन तो 2/5 या फिर 3/5 होगा, ठीक है। तो क्या दे रखा है गलत दे रखा है। सेकंड इज ए फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द वोल, तो वोल नंबर्स के रिप्रेजेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है। इट मींस ए ट्रू है और सेकंड वाला फॉल्स है, तो ए इज फॉल्स, सॉरी ए इज फॉल्स और सेकंड वाला क्या है ट्रू, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, देन द आंसर इज डी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।